Hello students, welcome to my channel. So class 11th, get ready for the new topic. Up till now we have discussed that states of matter are interconvertible. What does it mean? That means that temperature plays the major role to convert solid into liquid and liquid into gaseous states. Suppose this is the example of ice, right? Suppose this is ice. Ice having so many water molecules. What are these green particles? These are just water molecule, H2O. Each particle, consider it H2O. So what does it mean? That means here all the particles are being condensed in a very fixed space and having fixed shape, that is the ice cube, right? If you give the temperature, delta sign stands for temperature, heating, the particles, they just become random, right, having some kind of kinetic energy, and when again we heat it, it becomes in gaseous state, means having more kinetic energy, right? So let's start with this animation and let's understand what are the states of matter. Convertible by changing the conditions of pressure or temperature. For example, on heating, a solid changes to liquid. Liquid, on further heating, changes to gaseous state at normal atmospheric pressure. Understood? Similarly, in the reverse process, gas on cooling changes to liquid, and on further cooling, liquid changes to solid. Very clear? जैसे भी आपने क्या कहा था, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, राइट? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या बन जाएगा? देखो, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड्स को और टेम्परेचर दोगे तो क्या बन जाएगा? वो गैस. इसको उल्टा करोगे यानी फ्रीज करोगे, हम कूल करेंगे, टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वापस वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा. ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. मेरा क्वेश्चन था आपसे कि आर वी लिविंग इन द बॉइलिंग एटमॉस्फियर? आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में देना है. आर वी लिविंग इन द बॉइलिंग एटमॉस्फियर? इफ वी आर लिविंग इन द बॉइलिंग एटमॉस्फियर, देन हाउ? इफ यू आर नॉट, then how? That means you have to justify your answer as well. Okay. Matter can be classified as pure substances and mixtures based on the chemical composition. Substances which contain only one kind of atoms or molecules are called pure substances. And in a pure substance, the composition of a substance is fixed. For example, carbon dioxide is a pure substance which consists of only molecules of carbon dioxide, and it has carbon and oxygen in a fixed ratio. प्योर सब्सटेंस आज उसी को बोलोगे जिसके पास एक फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी ये रेशियो फिक्स्ड होता है, राइट? तो प्योरिटी और मिक्सचर दो अलग चीज़ें हैं. तो जब भी हम प्योर की बात करेंगे यानी वहाँ पे जो भी जो भी मॉलिक्यूल से या जिस भी सब्सटेंस या कंपोनेंट से जो भी चीज़ मिलके बनी है उसमें सबका फिक्स चीज़ें हो, फिक्स प्रपोर्शन हो, फिक्स रेशियो हो, तो क्या कहें जाएंगे? वो प्योर सब्सटेंसेस. When elements or compounds are mixed together in any proportion, it results in the formation of a mixture. करेक्ट. अगर प्रपोर्शन यानी कि किसी भी कंपोनेंट्स का प्रपोर्शन सेम नहीं है, यानी कि किसी भी प्रपोर्शन में आपने मिला दिया किसी भी सब्सटेंस को, खूब सारे सब्सटेंस को एक बार मिला दिया, प्रपोर्शन फिक्स्ड नहीं है, तो क्या बोलेंगे? मिक्सचर. लेकिन अगर आप प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, वहाँ पे जितने भी कंपोनेंट हैं उस सब्सटेंस में, जितने भी चीज़ मिलके बना है, तो क्या बोलेंगे? वो प्योर है. करेक्ट. तो प्योरिटी को केमिकली हम डिफाइन करेंगे तो प्रपोर्शन से. Thus, in a mixture, the composition varies. For example, seawater comprises of dissolved salts and water. The seawater consists of varied amounts of dissolved salts and water. Pure substances can be further classified into elements and compounds based on separation of it into its respective constituents. Pause the video and note down the content. Substances which consist of only one kind of atoms are called elements. Examples of elements are sodium,
copper, silver, एक बात क्लियर रखेंगे, जब भी हम सब प्योरिटी की बात करेंगे तो प्योरिटी दो टाइप की होगी, ठीक है ना, या तो हम एलिमेंट की बात करें या तो कंपाउंड की बात करें। तो जब भी हम एलिमेंट की बात करते हैं, एलिमेंट वो होते हैं जिनके सारे एटम्स, यानी एलिमेंट याद रखेंगे वो प्योर हुआ। जैसे हमने बोला सोडियम, तो सोडियम तो एक क्या है, एक भाई एलिमेंट है, और सोडियम के अंदर जितने भी एटम हैं वो सारे सारे कैसे कहेंगे, एक जैसे हैं, करेक्ट। हम सपोज करिए हमने ये इस सोडियम का कोई भी मेटल ले लिया, तो कहेंगे जितने भी एटम है, यानी कि सोडियम के जितने भी एटम है सब कैसे हैं, Na हैं, सारे के सारे क्या हैं, Na हैं, Na प्लस Na प्लस। प्लस हम टर्म इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो आयनाइज होता है, तो इसलिए हम लिख देते हैं प्लस, राइट, क्रिस्टल फॉर्म बना देते हैं वो। तो बेसिकली जितने भी एटम होंगे सब एलिमेंट में वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे, ऑफ कोर्स। तो थ्रू आउट द एलिमेंट एटम्स आर इक्वल, तो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट। ऑफ कोर्स एक जैसे एटम से कोई भी चीज़ बनी है मिलकर तो उसे क्या बोल देते हैं, वैसे भी एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, सिल्वर, हाइड्रोजन, hydrogen, ऑक्सीजन। oxygen, etc. An element cannot be further separated into its constituents by physical or chemical means. एलिमेंट तो सारे एक ही जैसे एटम हैं, तो उनको कहाँ सेपरेट कर For सकते हैं। example, oxygen consists of only oxygen atoms and it cannot be further separated into its constituents, that is, oxygen atoms. Two or more elements combine chemically in a fixed proportion to form a compound. Examples of compounds are ammonia, water, etc. कंपाउंड्स भी प्योर होते A हैं। compound cannot be further separated into its constituents by physical means but can be separated by chemical methods. नो डाउन। For example, oxygen and hydrogen are present in a 1:2 ratio by volume in water. And देखें, अब जब भी हम वाटर फार्मूला देते हैं तो वाटर क्या है, वाटर को केमिकली हम क्या बोलेंगे, वो प्योर कंपोनेंट या प्योर कंपाउंड है। वाटर क्या बोलते हैं, प्योर कंपाउंड है, प्योर एलिमेंट नहीं बोलते। एलिमेंट में हमेशा एक एलिमेंट की बात करते हैं, आइदर हाइड्रोजन, आइदर ऑक्सीजन, आइदर सोडियम, राइट। तो कंपाउंड क्या है, वन और मोर देन टू, वन और मोर देन वन, कोई भी एलिमेंट आपने मिक्स कर लिया, उसके एलिमेंट कंपाउंड एटम्स का यूज़ कर लिया, तो क्या बोलते हैं, कंपाउंड। हाँ, फिक्स्ड रेशियो है, एलिमेंट्स का फिक्स्ड रेशियो कहलाता है कंपाउंड, तो वो प्योर हुआ, राइट। तो यहाँ पे देखा हमने कि जब भी कहीं भी वाटर की बात करेंगे तो वाटर का फॉर्मूला हमेशा H2O रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोल्ड वाटर में फॉर्मूला H2O2 हो जाएगा और वार्म वाटर में H2O हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वाटर का फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा, यानी कि रेशियो क्या हुआ, H2O कैसे, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, तो क्या बोलेंगे, 2:1। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लिखा है 1:2 ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, हम क्या बता रहे हैं, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन पूछे तो 2:1 हो जाएगा, अंडरस्टूड है। यानी कि एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन है, तो ये वाटर कहलाएगा। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल कहलाता है, एक इसका कंपाउंड बेसिकली हो गया। तो ये क्या हुआ, प्योरिटी की बात करेंगे। water, that is H2O, can be separated into its constituents, hydrogen and oxygen, by electrolysis, Right, but chemical cannot be procedure हुआ ये। separated into its constituents by any of the physical methods such as distillation, fractional distillation, etc. Also remember that the properties of a compound are different from those of its constituent elements. For Note down. example, the elements hydrogen and oxygen, being gaseous in nature, combine to form a compound, water, अंडरस्टूड। which is a liquid. देखो, कंपाउंड क्या होते हैं, जो कंपाउंड बनता है, जैसे मान लो वाटर कंपाउंड है, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी, राइट। देखें यहाँ पे कंपैरिजन है, कंपाउंड क्या है, वाटर कंपाउंड, कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, H2O। अब कोई कंपाउंड किससे मिलके बना है, 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना है, राइट। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इज हैविंग द केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल एलिमेंट्स। तो क्या बता रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैज गैस कंपाउंड हैज बीन कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड विच इज अ लिक्विड। अब ये लिक्विड फॉर्म में है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस फॉर्म में थे, गैस फॉर्म में थे। तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना, स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो गए ना। तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, याद रखेंगे, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है
कंपाउंड तो ये हो गया, कंपाउंड तो वाटर हो गया। कंपाउंड की प्रॉपर्टी इंडिविजुअल एलिमेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट हो जाते हैं। अंडरस्टूड है? सामने दिख रहा है, एक वाटर फॉर्म, एक लिक्विड फॉर्म में है, बाकी दोनों जो इंडिविजुअल चीजें हैं वो क्या है, गैसियस फॉर्म Mixture में। can be classified further based on the uniformity of the particles present in it. If the particles are distributed uniformly throughout the solution, then it is a homogeneous mixture. मिक्सचर को दो पार्ट में For बोलेंगे, example, होमोजेनियस एंड sugar solution is हेट्रोजेनियस। a homogeneous mixture because पूरी तरह से sugar मिक्स हो जाएगा। particles get distributed uniformly